वॉइस और बोर्ड क्लियर है, प्लीज कंफर्म कीजिए। अरीबा और जेबा कहाँ है? उन्होंने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है। हम बच्चे बाकी सब क्लास में नहीं है। अरीबा, जेबा, मोहम्मद यासीन रिजवी क्लास को हाँ, वो दो कहाँ है फिर? पता नहीं क्लास को ज्वाइन करेंगे कि नहीं, वरना हम फिर स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों को अगर क्लास नहीं देनी है तो मैसेज किया करे पहले ही। हाँ, जेबा ने भी क्लास को ज्वाइन किया है। अरीबा पता नहीं कहाँ है। तो चलिए तब तक हम पिछला जो है रिपीट करेंगे। तो शाबाश, मुझे बताइए हमने क्या पढ़ा था? उर्दू की पैदाइश के बारे में हमने मुख्तलिफ नजरियात पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था नसीरुद्दीन हाशमी का नजरिया, हाफिज महमूद शिरानी का नजरिया, मोहम्मद जो है मसूद हुसैन खान का नजरिया, मोहिउद्दीन कादरी जोर का नजरिया, और इसके जो है सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया, डॉक्टर सहेल बुखारी, आजाद, शौकत सब्जवारी, अख्तर ओरेनवी, और इसके अलावा भी देखा था हमने सर सिदामा खान। इनका नजरिया जो था उर्दू की पैदाइश के बारे में, उर्दू की इब्तिदा के बारे में हमने इनके बारे में पढ़ा था। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन मत है इसके रिगार्डिंग? बोर्ड नहीं दिख रहा है? किस किस को बोर्ड नहीं दिख रहा है? बोर्ड किस किस को नहीं दिख रहा है? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक सेकंड वेट कीजिए। अब बताइए, बोर्ड दिख रहा है अभी? एक सेकंड वेट कीजिए, 1 मिनट। क्लास को मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ। वॉइस और बोर्ड क्लियर है अब? प्लीज कंफर्म कीजिए। हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए सभी लोग, मुझे बताइए सभी लोग, मुझे जवाब देंगे। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये किसका नजरिया था? शाबाश नसीरुद्दीन हाशमी। सब लोग जवाब देंगे। इसके बाद मुझे बताइए, उर्दू मागधी से निकली है, ये किसका नजरिया था? उर्दू मागधी से निकली है। शाबाश। हाँ, अख्तर और एनवी का नजरिया था। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है लिसानियात से मुतल्लिक जो अहम तसनीफात है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। लिसानियात से मुतल्लिक अहम जो किताबें हैं, उनको हमें पढ़ना है।
ہاں، لسانیات سے متعلق جو اہم تصنیفات ہے ان کو ہمیں پڑھنا ہے. یہاں سے ایگزام میں کوشچنز پوچھا جاتا ہے. تو لکھ لیجئے سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی جو ہے ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ نصیر الدین ہاشمی جو ہے ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ دکن میں اردو. دکن میں اردو. اور اس کا سن کیا ہے؟ 1923. نصیر الدین ہاشمی دکن میں اردو یہ ان کی تصنیف ہے 1923. اس کے بعد حافظ محمود شیرانی جو ہے ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا. حافظ محمود شیرانی جو ہے ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ پنجاب میں اردو. پنجاب میں اردو. 1928. پنجاب میں اردو 1928. لکھ لیا آپ سبھی نے. نصیر الدین ہاشمی کی جو تصنیف کا نام ہے وہ ہے دکن میں اردو 1923 عیسوی. اینڈ حافظ محمود شیرانی کی تصنیف کا جو نام ہے پنجاب میں اردو 1928. ہاں. تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے مسعود حسین خان کی. مسعود حسین خان جو ہے ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ مسعود حسین خان کی تصنیف کا نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو. مقدمہ تاریخ زبان اردو. اس کا سن کسی کو پتا ہے؟ مسعود حسین خان کی تصنیف کا جو نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو 1948. شاباش. 1948. مقدمہ تاریخ زبان اردو یہ تصنیف جو ہے مسعود حسین خان کی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے گوپی چند نارنگ ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ شاباش بتائیے. گوپی چند نارنگ کے بارے میں بتائیے. گوپی چند نارنگ کی جو تصنیف ہے اس کا نام ہے اردو زبان اور لسانیات. لکھ لیجئے. ہاں، عام لسانیات بھی جو ہے انہی کی تصنیف ہے. لکھ لیجئے اردو زبان اور لسانیات. اور اس کے علاوہ جو دوسری تصنیف ہے ان کی اس کا کیا نام ہے؟ اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو. اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو. اردو زبان اور لسانیات اور اس کے بعد اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو یہ دونوں تصنیفات جو ہے گوپی چند نارنگ کی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے احتشام حسین کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ احتشام حسین کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے ان کی جو تصنیف ہے اس کا نام ہے اردو کی کہانی. کل میں نے بولا تھا اردو کی کہانی اور کس کی تصنیف ہے؟ مجھے بتائیے. شاباش. سب لوگ جواب دیں گے. اردو کی کہانی کل میں نے پڑھایا تھا یہ کسی اور کی بھی تصنیف کا نام ہے. اردو کی کہانی جو ہے احتشام حسین کی یہ تصنیف کا نام ہے. اس کے بعد شاباش سہیل بخاری کی بھی یہ تصنیف کا نام ہے. اردو کی کہانی جو ہے احتشام حسین کی بھی تصنیف ہے اور یہ جو ہے ڈاکٹر سہیل بخاری کی بھی تصنیف کا نام ہے. اس کے بعد لکھ لیجیے احتشام حسین کی اور ایک تصنیف کا نام جو ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ. ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ بھی احتشام حسین کی تصنیف کا نام ہے. ہندوستانی لسانیات کا خاکہ. اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے اردو کی کہانی یہ دونوں تصنیفات جو ہے احتشام حسین کی ہے. اور اردو کی کہانی جو ہے ڈاکٹر سہیل بخاری کی بھی تصنیف کا نام ہے. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ سبھی نے لکھ لیا؟ پھر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد شوکت سبزواری.
اس کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ شوکت سبزواری کی تصنیف جو ہے اردو لسانیات. ڈاکٹر شوکت سبزواری کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ اردو لسانیات. یہ اردو لسانیات جو ہے اور کس کی تصنیف ہے؟ احتشام سے پہلے کیا ہے؟ احتشام سے پہلے ہے گوپی چند نارنگ. ان کی تصنیفات کا جو نام ہے وہ ہے اردو زبان اور لسانیات. اور اس کے بعد جو دوسری تصنیف ہے اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو. اور شوکت سبزواری کی تصنیف کا جو نام ہے اردو لسانیات. اس کے بعد مجھے بتائیے، کل میں نے پڑھایا تھا اردو لسانیات اور کس کی تصنیف کا نام ہے شوکت سبزواری کے علاوہ؟ بتائیے. ڈاکٹر رشید. میں سمجھی نہیں. سندھیا جی. نصیر احمد خان. شاباش. صوفیہ خاتون، آپ نے کیا بتایا ہے؟ ڈاکٹر رشید. ڈاکٹر رشید احمد خان. ڈاکٹر رشید احمد خان، میں سمجھی نہیں. اردو لسانیات جو ہے ڈاکٹر رشید جو ہے احمد خان کی یہ تصنیف نہیں ہے. میں نے کل پڑھایا تھا نا، پروفیسر نصیر احمد خان کی ہے. ہاں، پروفیسر نصیر احمد خان کی تصنیف ہے. ہاں. شوکت سبزواری کی جو تصنیف ہے اردو لسانیات، یہ تصنیف جو ہے پروفیسر نصیر احمد خان کی بھی تصنیف کا نام ہے. تو چلیے اس کے جو ہے آگے بڑھتے ہیں. مرزا خلیل احمد بیگ. مرزا خلیل احمد بیگ. ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ کل کی کلاس میں نے بولا تھا. مرزا خلیل احمد بیگ جو ہے ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ لکھ لیجئے. اردو زبان کی تاریخ. اردو زبان کی تاریخ. ہاں، شاباش. اور اس کے بعد جو دوسری تصنیف ہے اردو کی لسانی تشکیل. اور اردو زبان کی تاریخ، اور اس کے بعد جو ہے اردو کی لسانی تشکیل، اور اس کے علاوہ لسانی تناظر. لسانی تناظر. اردو زبان کی تاریخ، اردو کی لسانی تشکیل، لسانی تناظر، یہ تینوں تصنیفات جو ہے مرزا خلیل احمد بیگ کی تصنیفات ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے گیان چند جین جو ہے ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ گیان چند جین. ان کی جو تصنیف کا نام ہے وہ ہے عام لسانیات. اور عام لسانیات کے علاوہ جو ہے لسانی مطالعے. عام لسانیات کے علاوہ جو ہے لسانی مطالعے، یہ دونوں تصنیفات جو ہے گیان چند جین کی ہے. ہاں، عام لسانیات. گیان چند جین کی جو تصنیفات کا نام ہے وہ ہے عام لسانیات اور لسانی مطالعے. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں. محی الدین قادری زور. محی الدین قادری زور جو ہے ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ محی الدین قادری زور کی جو تصنیف ہے ہندوستانی لسانیات. کسی کو اس کا جو سن پتا ہے؟ محی الدین قادری زور جو ہے اس کی تصنیف کا نام ہے ہندوستانی لسانیات. اس کا اگر کسی کو سن پتا ہے تو بتا دیجیے. تاریخ بتائیے. محی الدین قادری زور ہندوستانی لسانیات. شاباش. کسی کو پتا ہے؟ اس کا سن کسی کو پتا ہے؟
हाँ, तो लिख लीजिए। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की जो तसनीफ़ है हिंदुस्तानी लिसानियात 1932। लिख लीजिए 1932 हिंदुस्तानी लिसानियात। इसके बाद लिख लीजिए शम्सुर रहमान फारूकी। शम्सुर रहमान फारूकी की जो तसनीफ़ का नाम है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना शम्सुर रहमान फारूकी की तसनीफ़ है। इसका अगर किसी को सन पता है तो बता दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे पता होगा सभी को। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना ये तसनीफ़ जो है शम्सुर रहमान फारूकी की है। इसका सन बता दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को पता होगा ये। आपने इसको पढ़ा होगा। संध्या, इसका जवाब दीजिए संध्या जी। इसका सन बताइए। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। लिख लीजिए 1999। 1999 उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ, लिख लीजिए आगे। रशीद हसन खान। रशीद हसन खान। इनकी तसनीफ का नाम बताइए। रशीद हसन खान जो है, इनकी तसनीफ का नाम है जुबान और कवायद। इम्पोर्टेंट है, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। जुबान और कवायद, ये यूनिट फर्स्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और यूनिट 7 के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। जो तनकीद का पोर्शन है, तनकीद व तहकीक, उसके हवाले से भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। रशीद हसन खान की जो तसनीफ है जुबान और कवायद, इसके अलावा उर्दू कैसे लिखें, ये भी इनकी तसनीफ है। उर्दू कैसे लिखें, और इसके अलावा उर्दू इमला। उर्दू इमला, जुबान और कवायद, उर्दू कैसे लिखें, उर्दू इमला, ये तीनों तसनीफात जो है रशीद हसन खान की है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, शौकत सब्जवारी जो है, हमने ऊपर ही देखा, इनकी जो तसनीफ है वो है उर्दू लिसानियात। और दूसरी जो इनकी तसनीफ है कौन सी है, दास्तान जुबान उर्दू। दास्तान जुबान उर्दू। एक तो इनकी तसनीफ का नाम है उर्दू लिसानियात, और इसके अलावा दास्तान जुबान उर्दू जो है इनकी तसनीफ का नाम है। इसके बाद लिख लीजिए खुर्शीद अहमद सिद्दीकी। खुर्शीद अहमद सिद्दीकी, इनकी तसनीफ का अगर किसी को पता है नाम, याद अगर किसी को है तो बताइए। शाबाश, शायद मैंने बताया है कल की क्लास में। किसी को पता है? खुर्शीद अहमद सिद्दीकी जो है, इनकी तसनीफ का नाम है उर्दू की लिसानी तारीख। उर्दू की लिसानी तारीख जो है किसकी तसनीफ का नाम है, तो ये तसनीफ जो है खुर्शीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ है। उर्दू की लिसानी तश्कील जो है मिर्जा खलील अहमद बेग की तसनीफ है। उर्दू की लिसानी तारीख जो है खुर्शीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ है, कंफ्यूज नहीं होना है। उर्दू की लिसानी तश्कील खलील अहमद बेग की है, उर्दू की लिसानी तारीख तारीख जो है खुर्शीद अहमद सिद्दीकी की है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? शाबाश, मुझे बताइए। हाँ, इसके बाद लिख लीजिए सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी, इनकी जो तसनीफ का नाम है क्या है, नकूश सुलेमानी। नकूश सुलेमानी जो है ये तसनीफ किसकी है, सैयद सुलेमान नदवी की ये तसनीफ है। किसी को इसका सन पता है? हाँ, शाबाश।
1939। सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ का जो नाम है नकूशी सुलेमानी 1939। यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश। शाबाश। इसके बाद जो है और दो है तसनीफात जो है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। अब लिख लीजिए। जॉर्ज गुरेडसन जो है इसकी तसनीफ का अगर किसी को नाम पता है तो मुझे मुझे बताइए। ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाली हूँ। एक तो ये जॉर्ज गुरेडसन के बारे में इनकी जो तसनीफ है, और इसके बाद और भी है कोई और एक। जॉर्ज गुरेडसन जो है इसकी तसनीफ का नाम मुझे बताइए। शाबाश। जॉर्ज गुरेडसन। हाँ, लिसानी जायजा हिंद। गुड। इंग्लिश में इसका नाम बताइए, अंग्रेजी में इसका नाम, इस तस्नीफ का नाम मुझे अंग्रेजी में बताइए। अंग्रेजी में पूछा जा सकता है वहां भी जो है, अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को अंग्रेजी में बताया जो है पूछा जा सकता है। ऐसे भी और वैसे भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। लिसानियाती जायजा हिंद लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिसानियाती जायजा हिंद, और मुझे अंग्रेजी में बताइए, इंग्लिश में बताइए इसको क्या लिखते हैं हम। शाबाश। लिसानियाती, लिसानियात को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इतना तो सभी को पता है ना। लिसानियात को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स। तो इसके बाद जायजा हिंद। लिंग्विस्टिक्स तो हाँ सही है। लिसानियाती। जायजा हिंद। जायजा हम किसको बोलते हैं? जरा मुझे बताइए। हम बोलते हैं ना किसी चीज का जायजा लेना, उसका क्या मतलब है? किसी को नहीं पता है इसका नाम जो है अंग्रेजी में हम कैसे लिखते हैं? अरीबा आप बताइए, आपको पता है? जेबा आप बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए, पता है आपको? नहीं पता है तो एन लिख दीजिए। हाँ, सोफिया आप बताइए, पता है आपको? बा आपने बता दिया। संध्या जी आप बताइए। सोबिया। नहीं। मोहम्मद यासीन रिजवी आप बताइए, आपको पता है? मतलब मैं समझी नहीं, इसका क्या मतलब है? हाँ चलिए, मुझे लगा था आपको पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो चलिए आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। लिख लीजिए। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब बताइए, किसी को पता था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उसको हम बताते हैं लिसानियाती जायजा हिंद। आपको तो पता है लिसानियात को हम क्या बोलते हैं, तो लिंग्विस्टिक बोलते हैं। जायजा लेने को हम बोलते हैं सर्वे करना, जैसे सर्वे करते हैं ना। हिंद तो पता ही है आपको, इंडिया को बोलते हैं। लिसानियाती जायजा हिंद, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, इस तसनीफ के आगे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये तसनीफ जो है जॉर्ज ग्रेडसन की है। इसके बाद जो है और एक अहम तसनीफ जो है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की तसनीफ है। इसका मुझे बताइए, एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये पिछली बार। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इनकी तसनीफ का मुझे नाम बताइए, आपको पता होना चाहिए। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा।
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की तसनीफ का मुझे नाम बताइए। शाबाश, सब लोग बताएंगे। अरीबा, हिंद, आर्याई और हिंदी। बाकी सभी जवाब देंगे। शाबाश। हाँ, लिख लीजिए जिनको नहीं पता है। हिंद, आर्याई और हिंदी। ये तसनीफ जो है किसकी है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की तसनीफ है। बहुत अहम है दोनों, जॉर्ज ग्रेयर्सन की भी तसनीफ और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की। अगर हम देखेंगे इसको बहुत कम बार एग्जाम में पूछा जा मतलब गया है। इससे पहले अगर हम बाकी जो तसनीफात है उनको एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है, लेकिन अगर हम देखेंगे जो नई चीजें होती है ना उनको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। जो चीजें एग्जाम में आई हुई होती है उनको भी पढ़ना जरूरी है, जो नहीं आई हुई होती है उनको पे भी फोकस करना जरूरी होता है। क्या पता आगे क्वेश्चन बने यहाँ से। जैसे कि मैंने बोला है, हिंद, आर्याई और हिंदी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, शायद पिछली बार ही पूछा गया है, इसके बाद भी पूछा जा सकता है। रिपीट होते हैं ना क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे कि पिछली बार एग्जाम में कुछ कॉल पूछा गया था सुनीति कुमार चटर्जी का, तो इस बार वो फिर से आ गया था, मैंने पेपर में देखा है, इस बार वो फिर से आ गया था। तो इस तरह क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसके हमने जो है लिसानियात से मुतल्लिक जो अहम तसनीफात है ये हमने कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे लिसानियात के मुतल्लिक जो अकवाल है इनको हम देखेंगे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनेंगे। लिसानियात के मुतल्लिक आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे? किसी के पास सिलेबस है? हाँ, किसी के पास अगर सिलेबस है तो बताइए। हाँ बताइए, इसके बाद क्या पढ़ना है हमें? शाबाश, बताइए सिलेबस में क्या है आगे। हाँ, इसके बाद उर्दू का इब्तदाई जमाना जो हमने अभी तसनीफ पढ़ी है शम्सुर रहमान फारूकी की। हाँ, आगे बताइए जो मेन टॉपिक है। इसके आगे क्या है? हाँ, जैसे कि हमें क्या पढ़ना है उसमें? उर्दू साख्त की बुनियादी, हाँ शाबाश, अनासिर, उर्दू की साख्त और बुनियादी अनासिर। शाबाश। हाँ, चलिए इसको हम आज कंप्लीट करते हैं। लिसानियात के मुतल्लिक जो है, जो चंद अकवाल है इनको हम पढ़ेंगे। लिख लीजिए, लिसानियात के मुतल्लिक जो अकवाल है लिख लीजिए। पहला जो है आप लिख लीजिए, मैं बताऊंगी। कहीं पे अगर नहीं आया लिखना तो मुझे बताइएगा, मैं बोर्ड पे लिखूंगी फिर। ठीक है? ठीक है, जवाब दीजिए। शाबाश। हाँ, लिख लीजिए, अगर नहीं आया कहीं पे तो मुझे बताना। हाँ, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनकी अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। ये कॉल जो है सुनीति कुमार चटर्जी का है, जो मैंने अभी बोला पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी एग्जाम में पूछा गया है। आप पेपर उठा के देख सकते हैं, पता होगा। संध्या जी को पता होगा, इनने इस बार पेपर दिया है ना। दो क्वेश्चंस इस यूनिट के हवाले से फिलहाल हमने देखे हैं। जो कि इससे पहले मैंने बोला था, वो जुबानों के हवाले से एक क्वेश्चन पूछा गया था और अखबारों में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, यही वाला सुनीति कुमार चटर्जी का। हाँ, दो क्वेश्चंस अभी तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ से दो क्वेश्चंस बने हैं इस वाले पेपर में जो 18 जून को पेपर हुआ था। हाँ शाबाश, लिख लीजिए। इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, आगे भी बनेंगे, ताकि आप ध्यान रखेंगे। लिख लीजिए, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनकी अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। ये कॉल जो है सुनीति कुमार चटर्जी का है। सभी ने लिख लिया है? मैं फिर से बताऊं?
اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کی ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے اس کو لکھ لیجیے گا آگے بریکٹ میں، سنیتی کمار چٹرجی کا ایک کال ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے لکھ لیجیے، سارے بہت امپورٹنٹ ہے۔ میر امن نے لکھا ہے، میر امن نے، ہاں اس کو آپ کاماز میں رکھیں گے۔ میر امن نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ یہ جو میں نے ابھی بولا نا، سنیتی کمار چٹرجی کا کال ہے، اس کو آپ الگ پین سے لکھیں گے، ہائی لائٹ کریں گے۔ یہاں پہ بھی میں نے بولا، یہ جو دوسرا کال میں نے بولا ہے میر امن کا ہے، اس کو بھی آپ الگ پین سے ہائی لائٹ کریں گے، آگے پہ کال لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ میر امن نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ اس حوالے سے بھی ایگزام کوشچن میں پوچھا گیا ہے، ایگزام میں کوشچن پوچھا گیا ہے یہاں سے بھی۔ میر امن نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ یہاں تک سبھی نے لکھ لیا یا میں پھر سے ریپیٹ کروں؟ شاباش۔ اگر کہیں پہ نہیں آئے گا لکھنا، میں پھر سے بتا رہی ہوں، مجھے بتائیے، میں بورڈ پہ لکھوں گی۔ لکھ لیا سبھی نے؟ شاباش۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے اس کو لکھ لیجیے۔ ہاں لکھ لیجیے، ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبرنشوں سے ہوئی ہے۔ یہ کوشچن بھی پوچھا گیا ہے، محی الدین قادری زور کا ایک کال ہے۔ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبرنشوں سے ہوئی ہے، محی الدین قادری زور۔ پراکرت کے کیا معنی ہیں؟ شاباش۔ پراکرت کے کیا معنی ہیں؟ فطری زبان۔ اور اپبرنش کے کیا معنی ہیں؟ شاباش۔ اپبرنش کے کیا معنی ہیں؟ بگڑی زبان۔ شاباش۔ یہاں سے بھی ایگزام میں کوشچن پوچھا گیا ہے، ان کا جو ہے معنی کیا ہے؟ اپبرنش اور پراکرت۔ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبرنشوں سے ہوئی ہے، یہ محی الدین قادری زور کا کال ہے۔ اس کے بعد لکھ لیجیے نیکسٹ والا، اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزی سے نکلی ہے، یہ مسعود حسین خان کا کال ہے۔ اردو کھڑی بولی، لکھ لیجیے، اردو کھڑی بولی اور ہریانوی، اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے۔ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے، مسعود حسین خان کا یہ کال ہے۔ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ شاباش۔ ہاں، اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزی سے نکلی ہے، یہ مسعود حسین خان کا کال ہے۔ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزی سے نکلی ہے، مسعود حسین خان۔ اس کے بعد جو نیکسٹ والا ہے لکھ لیجیے، گیان چند جین نے کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے، کل بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ گیان چند جین نے کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ والا لکھ لیجیے، امپورٹنٹ ہے، ماہر لسانیات نے اپبرنشوں کو ہند آریائی زبانوں کی عہد وسطی اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ماہری لسانیات نے اپبرنشوں کو ہند آریائی زبانوں کی عہد وسطی اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ لکھ لیا سبھی نے؟ ماہرین لسانیات نے اپبرنشوں، شاباش، ماہرین لسانیات نے اپبرنشوں کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطی، عہد وسطی ایسے لکھتے ہیں، اگر کسی کو نہیں آئے گا تو بتائیے ساتھ ساتھ میں، عہد وسطی اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ سبھی نے لکھ لیا؟
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला जो है इसको लिख लीजिए। मुझे बताइए, हाँ, रिपीट कहाँ पे करना है बच्चे? लिख लीजिए, माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद-आर्याई ज़ुबानों के अहद-ए-वुस्ता और अहद-ए-जदीद के मिलाने वाली कड़ी कहा है। माहिरीन लिसानियात ने माहिरीन लिसानियत ने अपभ्रंशों को हिंद-आर्याई ज़ुबानों के अहद-ए-वुस्ता और अहद-ए-जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। अब लिख लिया? अब क्लियर है? सो भी आप क्लियर है? या मैं फिर से रिपीट करूँ? बताइए बच्चे। हाँ, नेक्स्ट वाला जो है, मध्य देश की ज़ुबान को मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया है? किसी को पता है? मुझे जवाब दीजिए। मध्य देश जो है, शाबाश, शाबाश अरीबा, यासीन रिज़वी, गुड, शाबाश बच्चे। हाँ, लिख लीजिए, ऐसे लिखते हैं। मध्य देश, मध्य देश की ज़ुबान को मगरिबी हिंदी का नाम ग्रेयर्सन ने दिया है। किसने दिया है? शाबाश। मध्य देश की ज़ुबान को मगरिबी हिंदी का नाम ग्रेयर्सन ने दिया है। अब मुझे बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये थे कुछ अक़वाल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का, मीर अमन का, मोहिद्दीन कादरी ज़ोर का, और इसके अलावा जो माहिर लिसानियत ने अपभ्रंशों को और जो है आर्याई ज़ुबानों को अहद-ए-वुस्ता और अहद-ए-जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मसूद हुसैन खान का भी इम्पोर्टेंट है, और लास्ट वाला जो ग्रेयर्सन का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप सभी ये याद रखेंगे। मैंने उतने ही बताए जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आप इतना याद रखेंगे तो आपका इंशाल्लाह अच्छा स्कोर हो जाएगा। उधर-इधर की चीज़ें, फालतू चीज़ें ज़्यादा आपको याद नहीं रखनी है। आप डेविएट हो जाएँगे। आपको फिर अच्छी चीज़ें जो है याद नहीं रखेंगे आप लोग। इसीलिए मैं आपको उतना ही बताती हूँ जो आपके लिए ज़रूरत है, जो आपकी नीड है, एग्ज़ाम की जो नीड है, बस उतना मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको भी याद रह जाए। अब मुझे बताइए, पैदाइश के हवाले से आपको क्लियर है? और लिसानियत के मुताबिक जो अहम तसनीफ़ात है वो भी क्लियर है? और हमने क्या पढ़ा है? लिसानियत के मुताबिक जो चंद अक़वाल है, कौल है, ये भी यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? शाबाश, मुझे बताइए। आज क्या जो है, आज कौन-सा दिन है? शाबाश। वेडनेसडे शायद, आई थिंक आज ट्यूसडे है? ट्यूसडे, हाँ, शाबाश बेटे। तो हम एक काम करेंगे, हम संडे के दिन भी क्लास लेंगे। आप लोग क्या बोलते हैं? संडे के दिन भी हम क्लास लेंगे। वो इसीलिए क्योंकि आगे जो है 1-2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी, तो इसीलिए मैं पहले ही चाहती हूँ कि मैं इस संडे क्लास लूँ, ताकि जो अगली संडे जो है, इसके बाद जो संडे आएगी नेक्स्ट संडे, उसको भी हम क्लास करेंगे। फिर 2 दिन शायद मुझे छूट जाएँगे, मैं उन 2 दिनों को क्लास नहीं दे पाऊँगी। शादी का थोड़ा-सा मसला है, शादी में जाना है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ मैं संडे के दिन आपको क्लास जो है, क्लास दे दूँ। हाँ, इसलिए पहले ही बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, टाइम टेबल को बना के रखते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि आप लोग तैयार रहेंगे, इस संडे को क्लास हम लेंगे। फिर आगे मेरे ख़्याल से 21-22 को हम क्लास नहीं कर पाएँगे। 21 को तो संडे ही है, उस दिन मैं क्लास लूँगी। नहीं, उस दिन क्लास नहीं ले पाऊँगी, सॉरी बच्चे। उस दिन जाना है, शादी में जाना है, तो क्लास नहीं ले पाऊँगी 21 को मैं। उस दिन संडे है वैसे। तो उससे पहले जो भी संडे 1 या 2 आएँगी, उनको मैं क्लास करूँगी, दोनों, ठीक है? ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूज़न मत है? अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, किसी भी जो हमने यहाँ तक पढ़ा है, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो फिर कल नया क्लास लेंगे, कल डाउट सेशन अलग से लेंगे, क्लियर करेंगे फिर नया आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वाला हमारा टॉपिक होगा, उस पे हम आगे आएँगे फिर। पहले उसी को क्लियर करेंगे अगर आपको कहीं पे डाउट है तो। किसी को कोई डाउट है?
आज 9 जुलाई था, है ना? 9 जुलाई था और संडे किस दिन आने वाली है? आज जो है मंडे ट्यूसडे है, 9 को ट्यूसडे है। संडे किस दिन है? उस दिन क्या डेट है? 14 शायद, है ना? 14 है शायद बच्ची। आज ट्यूसडे है ना? आज 9 जुलाई है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हाँ, 14 है उस दिन। हाँ, 14 के बाद जो नेक्स्ट जो है संडे आएगी वो किस दिन होगी? 20 को आएगी, है ना? हाँ, हम काम करेंगे जो 14 को जो आएगी ना संडे, उस दिन भी हम क्लास करेंगे और जो 20 को उसके बाद जो नेक्स्ट संडे आएगी उस दिन भी हम क्लास करेंगे। फिर आगे 21-22 को हम क्लास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम पहले ये 2 क्लासेस लेके रखेंगे ताकि आपको सफर ना करना पड़े। हाँ, शाबाश। 20 को शायद संडे है बच्चे मेरे ख्याल से। 20 हाँ 21 को, हाँ सॉरी, 21 को संडे है। हम कोशिश करेंगे 2 क्लासेस लेने की ताकि 2 दिन क्लास छूट जाएगी ना, इसीलिए हम पहले ही 2 क्लासेस करेंगे। दास्तान जुबां उर्दू, उर्दू लिसानियात। आपने नहीं लिखा बच्चे? आपने तसनीफ नहीं लिखी किसकी है? दास्तान जुबान उर्दू, शौकत सब्जवारी की मैंने बताया ना। दास्तान जुबां उर्दू और उर्दू लिसानियात ये दोनों जो है शौकत सब्जवारी की है। हाँ, लिख लिया? सोफिया खातून, लिख लिया? हाँ, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। दास्तान जुबां उर्दू और उर्दू लिसानियात जो है डॉक्टर शौकत सब्जवारी की तसनीफात है। मैं बोलती हूँ ना उसी टाइम बताया करे। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता है या छूट जाता है, बताइए, मैं बताऊंगी फिर से। आप लिख लिया? हाँ, शाबाश। और किसी को कोई क्वेश्चन है? तबीयत मेरी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। है किसी को और कोई क्वेश्चन? मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। कल से बहुत ज्यादा फीवर है मुझे, मैंने कल भी बोला था ना, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मुझे बहुत फीवर है। हाँ, दुआ कीजिएगा सभी लोग मेरे लिए कि आज भी जो मैं है 1 बजे ही यूनिवर्सिटी से वापस आई थी। तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी मेरी, फिर वापस ही आई मैं 1 बजे। आमीन। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे, आपको अपनी कामयाबी में जो है आपको कामयाबी अता करे। आपकी जो नई ख्वाहिशात है वो पूरी हो जाए सभी की। हाँ, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर हम क्लास को रखते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे, अगर सैटरडे के दिन तक हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया ना, मेरे ख्याल से हो जाएगा। हम इस यूनिट का टेस्ट लेंगे सैटरडे के दिन, फिर संडे के दिन हम क्लास करेंगे, सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे फिर। थैंक यू बच्चे, सोबिया। रेस्ट कैसे कर पाएंगे? यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा काम होता है तो रेस्ट करना बहुत मुश्किल है। बच्चे इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, रेस्ट करेंगे। बस आप दुआ कीजिए तो हम ठीक हो जाएंगे। हम काम करेंगे, मेरे ख्याल से सैटरडे के दिन तक हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बोलूंगी, फिर 1-2 दिन आप कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी, प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, इसको रिपीट कीजिए बार बार इस यूनिट को। फिर मैं आपको बताऊंगी पहले 1-2 दिन पहले ही मैं आपको बोलूंगी, फिर आपको एग्जाम लिया जाएगा सैटरडे के दिन। और एग्जाम लिया जाएगा, बस उस दिन क्लास नहीं होगी, एग्जाम लिया जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे उसके बाद जो संडे आएगी में हम क्लास लेंगे, सेकेंड यूनिट का हम स्टार्ट करेंगे फिर। सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे।
सेकंड यूनिट के बाद थर्ड यूनिट और उसके बाद फोर्थ, इसी तरह हम चलेंगे आगे-आगे, ठीक है? सीक्वेंस वाइज़ हम चलेंगे आगे। आपका ये अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँगे। संध्या जी, आप बताइए आपकी तैयारी कैसे हो रही है? आपका एग्ज़ाम है ना बच्चे? आपका एग्ज़ाम है ना, आपकी तैयारी कैसे हो रही है? जो बाकी यूनिट्स है, उन पे ज़्यादा फ़ोकस किया। आपको पता है ना, आपका अभी मेरे ख़्याल से 1 महीना ज़्यादा है। हम तब तक 2-3 यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे। आप कोशिश कीजिए जो बाकी यूनिट्स है ना, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th वाला जो बाकी यूनिट्स है, उनको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। ये 3 हम क्लास में पढ़ लेंगे। यहाँ से आपको अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। बाकी जो 7 यूनिट्स है, उन पे आप अच्छे से उनको रिवाइज़ कीजिए, बार-बार मॉक टेस्ट्स दीजिए और बाकी तब तक हम ये पहले 3 यूनिट्स हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे आप टेस्ट्स भी देंगे और आपको रिवाइज़ भी हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर को भी अच्छे से जो है आपका इस बार स्कोर आया था 50 क्वेश्चंस आपके सही हुए थे। टारगेट रखिए 80 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। इंशाल्लाह आपका सही हो जाएगा। हाँ, किसी ने और इस बार का फॉर्म फिल किया था? आपका आप जनरल कैटेगरी से हैं? हाँ, बच्चे आप बोलिए। मोहम्मद यासिर रिज़वी आप बोलिए। आपका कैटेगरी क्या है? जनरल है या ओबीसी है? वैसे जो बाहर के बच्चे होते हैं ना, सभी ओबीसी ही होते हैं। ये तो हम लोग ही हैं जो जनरल में हैं। मैंने बोला था ना बाहर के बच्चे मैंने जो भी देखे हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले हैं। काश हम भी होते। हम तमन्ना करते हैं काश हम भी ओबीसी कैटेगरी में आते। तो जनरल में बहुत ज़्यादा स्कोर चाहिए होता है। आपने देखा होगा स्कोर बहुत ज़्यादा दिन-ब-दिन बढ़ता है। पिछली बार आपने देखा होगा 216 जो जनरल को हुआ था कट-ऑफ नेट का, 216 हुआ था नेट का कट-ऑफ। ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जनरल वालों को और ओबीसी का बहुत डिफरेंस रहता है। तो आप कोशिश कीजिए आपका 200 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। 200 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए ओबीसी वालों का। आप इतना टारगेट रख के चलिए तो इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। आपका बेनिफिट है ना सभी का, मेरे ख्याल से सभी का ओबीसी कैटेगरी है। सोफिया जी आप बताइए आप जनरल कैटेगरी से हैं? अरे वाह! कोई बात नहीं बच्चे हम ज़्यादा थोड़ा हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है ना। आप थोड़ा-सा और लेवल बढ़ा दीजिए बस, हो जाएगा आपका भी इंशाल्लाह। सोफिया जी आप जनरल से हैं? आपकी कैटेगरी जनरल है? कोई बात नहीं बच्चे इतना बड़ा मसला भी नहीं है। ये है बहुत सारे बच्चे जो है जनरल से ही होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है ज़्यादा मेहनत करने वाले अगर बच्चे होते हैं तो हो जाएगा। ओबीसी वाले उनको भी थोड़ा अगर थोड़ा-सा मिलता है तो रिलैक्सेशन मिलता है तो इसमें भी कोई बात नहीं है। आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए, ये भी मेहनत करेंगे। अगर हम देखेंगे बहुत खुश हूँ इस क्लास से। पहले दिन 2 दिन मेरा मूड खराब हुआ। मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे लगा था डेडिकेटेड नहीं है इस क्लास को लेके। लेकिन जब मैंने आपको बोला था आप क्लास टाइम पे लेंगे, किसी को अगर कोई मजबूरी होगी तो पहले ही बताइएगा वो फिर मुझे। लेकिन मैं देख रही हूँ सभी लोग अच्छे से क्लास दे रहे हैं, सभी लोग माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जो है आप अगर अच्छे से क्लास देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपका इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा। मैं अल्लाह ताला करती हूँ, आप सभी को कामयाबी हासिल हो। कि जो आप लोगों की पंक्चुअलिटी है ना क्लास में रोज़-रोज़ आने का, टाइम पे आने का, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लोग सभी सोफिया, सोबिया, मोहम्मद यासीन रिज़वी और अरीबा और बाकी लोग जो है क्लास में क्या नाम है? सिंधिया जी, कोई अगर रह गया तो गिगा जो भी है क्लास में अभी, मतलब जो भी हमारे क्लास में है, सभी आते हैं ना क्लास में। कोई शायद रह गया हाँ, ज़ेबा, ज़ेबा बख्तियार। मुझे लगा था ना कोई रह गया है। सभी लोग जो है क्लास में टाइम पे आते हैं और रेगुलर क्लास में आते हैं, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, कभी काम हो सकता है, आप बता भी सकते हैं पहले ही मैम क्लास नहीं दे सकते हैं आज, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे ही क्लास में बैठना ये अच्छी बात नहीं है। वैसे मुझे पता है आप सभी लोग घर का काम करते होंगे, दिन में यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और बाकी जो काम है लड़कियों को होता है, लड़कों को होता है काम, सभी लोग अपना-अपना काम करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है पढ़ाई को लेकर अगर आप डेडिकेटेड है तो बहुत अच्छी बात है। इसी से इंसान को कामयाबी हासिल होती है। बस और किसी को और कोई क्वेश्चन? फिर हम आगे जो है इस क्लास को रखते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर।
ہے किसी को और कोई क्वेश्चन? शाबाश। मुझे क्लास में होता है अरीबा जो है ना, मुझे लगता है शायद अरीबा कश्मीर से है। मुझे मतलब अरीबा बच्चे आप कहाँ से हैं? आप सभी के नाम बहुत प्यारे हैं। यूपी बनारस, सभी के नाम बहुत प्यारे हैं। सोबिया, मेरी क्लासमेट है एक सोबिया, अरीबा है, सोफिया है। हाँ, मेरी क्लासमेट है एक सोबिया। सभी के नाम माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको कामयाबी अता अल्लाह ताला। तो चलिए फिर बच्चे हम क्लास को रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।